Hello, good morning, everyone. Good morning, sir. Okay, so we have continued how our topic ecology and environment, unit number one. We have already started in last week ecology and environment, and we have done definition of environment science. What is environment science, right? Then what is biotic and what is abiotic environment, a scope of environment science, and now the importance of environment, right? We have also done one slide, but uh, we have start from again the importance of environment. What is important of environment? So environment is not a single subject, we all have know, right? Environment is not a single subject, right? It is an it is not a single subject, it is an integration. What is integration, right? The summation of different branches like physics, social science, chemistry, right? All like subject we have some in environment के जो अलग अलग सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स है, राइट, केमिस्ट्री है, सोशल साइंस है, वो सभी को समेशन करना मीन्स इंटीग्रेशन करना, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल सब्जेक्ट that include both science and social science. To understand all the different aspect of our environment, we need to understand biology, chemistry, physics, geography, resource management, economic, and population issue. Right? We all have done in last lecture. Thus, the scope of environment study is extremely wide and covers some aspect of nearly every major discipline. इसीलिए ये जो environment है वो सभी सब्जेक्ट का राइट समेशन है, तो उसका जो यूज है, उसका जो स्कोप है वो भी वाइड रेंज है, यानी बहुत सारा उसका स्कोप है, राइट? वो स्कोप हम डिटेल में आगे स्टडी करने वाले के व्हाट इज एनवायरनमेंट, राइट? We will in a world in which natural resources are limited. We know what is our natural resources: mineral, petroleum, right, diesel, etc. is our all are our natural resources are limited. Water, air, soil, mineral, oil, the product we get from the forest, grassland, ocean, and for agriculture and from livestock are all the part of our life support system. Without them, life itself will be impossible, right? So this is done in our last lecture, right? Now we will continue from today's session, right? So importance of environment, we have continued from importance of environment. So as we keep on increasing in number, the quantity of resources is of us use also increases. कि जैसे जैसे हम हमारा जो increasing in number, the quantity of resources is of us use also increase. हमें पता है कि population जैसे जैसे increase हो रहा है, right? What is population? Anybody know? आबादी राइट? आबादी, पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ईयर टू ईयर, बाय डे टू डे, राइट? तो हमें पता है कि जो रिसोर्सेज है उसका यूज भी वैसे ही साथ में इंक्रीज हो रहा है. द अर्थ कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू सस्टेन दिस एक्सपेंडिंग लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. और अर्थ को ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं है कि ये सब रिसोर्सेज है वो उतने ज्यादा लेवल पर अब यूटिलाइज होने लगे हैं. Added to this is misuse of resources. We waste our pollute large amount of natural clean water. We create more and more amount of plastic that we discard after the single use. We waste large amount of food which is described as garbage, right? डे टू डे हम हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि वाटर है, राइट, एयर है, राइट,
लैंड है, वो सभी को हम मिसयूज, हमारा जो नंबर ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से उसका मिसयूज जो है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, राइट। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्लास्टिक जो है वो भी ज्यादा हम यूज कर रहे हैं, तो गार्बेज है जिसको बोलते हैं कचरा, राइट, वो बढ़ने लगा है, राइट। एयर पोल्यूशन लीड टू रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी हमारे जो फेफड़े है, राइट, जो हम ब्रेथ अंदर लेते हैं, एयर के पोल्यूट होने की वजह से हमारे अंदर जो ऑक्सीजन जा रहा है वो भी आपको आपके रेस्पिरेटरी का डिजीज होता है। वाटर पोल्यूशन लीड टू gastrointestinal GIT disorder and many polluants are known to causes cancer, right? आपको पता है, अगर आप सूरत के अंदर 2-3 कैंसर हॉस्पिटल है, आप वहां पर जाते हैं और देखोगे तो कितने मरीज आ रहे हैं, राइट। Improving this situation we only happen if each of you begin to take action in our daily life that will help preserve our preserve environment our resource। environment कि अब resource. सब जो है We हमारे, cannot ये expect सब जो government alone to manage हम the safety, प्रिवेंट करेंगे, यानी कि जितना guarding बने उतना लो of यूज our करेंगे। environment. Nor can we expect other people प्लीज to म्यूट योर माइक एवरीवन। We cannot expect गवर्नमेंट अलोन टू मैनेज द सेफ गाइडलाइन। क्या हमें ओनली गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ना कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, पोल्यूशन वो का काम करेगी, या तो वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, या तो हमारे आसपास वाले लोग हैं या तो हमारे फ्रेंड है वो कुछ करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना है। हमें भी स्टार्ट कर देना है कि पोल्यूशन कम करे और जितना बने हमारा एनवायरमेंट को प्रिजर्व करे या तो सेव करे, राइट। इसलिए सभी जगह आपने स्लोगन देखा होगा, सेव एनवायरमेंट, सेव वाटर, राइट, राइट, सेव फॉरेस्ट। ये सब स्लोगन जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ते हैं, बट यूज हमारे लाइफ के अंदर नहीं उसको यूज करते या तो मेंटेन करते, राइट। तो आपको वो स्लोगन को फॉलो करना भी स्टार्ट करना है, राइट। वी नीड टू डू इट आवर सेल्फ, ओनली गवर्नमेंट करे ऐसा भी नहीं है, और एनवायरमेंट नॉट can we expect other people to prevent environment damage, we need to do it ourselves, right? So this is the important of environment. Now scope of environment, right, we have studied, this is our second topic, scope of environment. First topic is only for introduction of environment, then called introduction of scope of environment, then important of environment. Now we have स्टडी डिटेल इन स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का क्या स्कोप है, तो वो स्कोप सीखे, उसके बाद पहले एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है वो सीखना होगा, राइट। तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ये जो है वो आप लोगों ने आई थिंक सीख कर आए कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर, जिसको दूसरा नाम है एयर। सबसे पहला कंपोनेंट एनवायरनमेंट का है एयर, राइट, जिसको आप एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मीन्स वाटर, राइट, यानी कि फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर जिसको एयर बोलते हैं, सेकंड इज हाइड्रोस्फीयर जिसको वाटर बोलते हैं, थर्ड इज लिथोस्फीयर जिसको अर्थ बोलते हैं, एंड फोर्थ इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड अर्थ, राइट, दिस इज नॉन एज बायोस्फीयर, राइट। तो फिगर समझ में आया ये वन, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, देयर आर 4 कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। वन इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज आल्सो नोन एज एयर, second is hydrosphere is also known as water, third is lithosphere is also known as earth, and the combination of air, water and earth is known as biosphere, and biosphere is a fourth component of environment, right? So now we that this is environment can be divided into 4, same here, atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere, right? तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वन बाय वन हम कंटिन्यू करते हैं, राइट। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बाद हम हाइड्रोस्फीयर करेंगे डिटेल में। हाइड्रोस्फीयर 2 इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, राइट।
तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर, राइट? तो इट इज द, यानी एटमॉस्फेयर इज द मिक्सर ऑफ वेरियस गैस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, pollutant gas like O3, SO2, NO2, CS4, so on, right? यानी एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, राइट? उसके अंदर गैस है, कॉमा वाटर वेपर, वाटर नहीं बट वाटर वेपर। वाटर वेपर मीन्स क्या? व्हाट इज वाटर वेपर? वाटर को जब आप 100 डिग्री पर भाप। ले जाओगे, राइट, मॉइस्चर जिसको भेज बोलते हैं ना, मॉइस्चर, राइट? तो वाटर वेपर, देन सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि डस्ट, राइट? सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे डस्ट दैट एंटायरली कवर द अर्थ एक्सटेंडिंग आउटवर्ड, यानी अर्थ के आउटवर्ड, बाहर का जो है सेवरल थाउजेंड किलोमीटर। कहां तक है? तो बहुत सारे सेवरल थाउजेंड किलोमीटर तक है, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर इज द, आपको रीड करना है साथ में, राइट? एटमॉस्फेयर इज द मिक्सर ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। गैसेस कौन कौन से है? तो नीचे यहाँ पर दिए है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर गैस, और उसका कितना परसेंटेज एटमॉस्फेयर में है। वो नाइट्रोजन जो है वो 0.7808% है, ऑक्सीजन जो है वो इतना है, राइट? ये सब परसेंटेज में दिया है, राइट? then subatomic particle, water vapor that entirely cover the earth extending outward, अर्थ के बाहर का रीजन, अर्थ के अंदर का नहीं, या तो अर्थ के ऊपर का नहीं, बट अर्थ जहां से खत्म होती है, यानी जमीन जहां से खत्म होगी वहां से एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है, राइट? एक्सटेंडिंग आउटवर्ड सेवरल थाउजेंड किलोमीटर, यानी कि जहां पर लिथोस्फीयर, अर्थ खत्म होता है, वहां से एटमॉस्फेयर स्टार्ट होता है, और कितने डिस्टेंस तक है? तो सेवरल थाउजेंड किलोमीटर। नाउ सेकंड इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट? देयर आर 4 पार्ट ऑफ, सोनी नमरा कौन है? नरमा सोनी, हेलो। सबको एक रिक्वेस्ट है, जो स्क्रीन के ऊपर आप एनोशन मत करिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, राइट? तो ये सोनी, जो आप जो टाइप वर्ड करते हैं एनोशन, तो सबको वो दिखेगा, वो जो दिखना चाहिए वो उसको नहीं दिखता है। तो सबको एक रिक्वेस्ट है कि एनोशन मत करिए स्क्रीन के ऊपर, राइट? दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर डिवाइड इनटू 4 कैटेगरी। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, second is stratosphere, third is mesosphere, and fourth is thermosphere, right? First is troposphere, यानी कि जहां पर लिथोस्फीयर खत्म होता है वहां से ट्रोपोस्फियर स्टार्ट होगा, राइट? उसके बाद ट्रोपोस्फियर जहां से खत्म होता है वहां से स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होगा, स्ट्रेटोस्फियर जहां से खत्म होता है वहां से मेसोस्फियर स्टार्ट होता है, राइट? और मेसोस्फियर जहां से खत्म होता है वहां से थर्मोस्फियर स्टार्ट होता है, वो लास्ट जो है वो है थर्मोस्फियर। तो दिस इज द 4 कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। हम सभी के बारे में डिटेल में स्टडी करना है कि व्हाट इज troposphere, what is stratosphere, what is mesosphere, and what is thermosphere. This is the only structure of atmosphere. यहाँ तक किसी को डाउट? एनी डाउट? No, sir. No, sir. अंडरस्टैंड ना? Yes. Yes, sir. So let's we start first with thermosphere. What is thermosphere? Right? कि हम पहले थर्मोस्फीयर से स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोस्फीयर, the lowest layer of earth is known as atmosphere, right? and उसके अंदर the thermosphere, right? सबसे पहला है, सॉरी 1 मिनट, ओके। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, राइट? ट्रोपोस्फियर, द ट्रोपोस्फियर, राइट? तो द ट्रोपोस्फियर यानी
जहां पर लिथोस्फीयर स्टार्ट होता है वहां से थर्मोस्फीयर स्टार्ट होगा, राइट। जमीन जहां से खत्म होती है, राइट, और सबसे पहला लो थर्मोस्फीयर का लोअरेस्ट लेयर जो है वो, सॉरी, एटमॉस्फेयर का लोअरेस्ट है वो कौन सा है? Troposphere. बोलिए। एटमॉस्फेयर का लोअरेस्ट ट्रोपोस्फियर ना? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट 1 मिनट। ओके, राइट। द लोअरेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, राइट, कि ये जो ट्रोपोस्फियर है वो एटमॉस्फेयर का लोअरेस्ट लेयर है, राइट। वो तो पता है ना, ग्राफ हमने देखा स्ट्रक्चर, Yes. सबसे लोअर वाला जो है वो है ट्रोपोस्फियर। अब क्या क्या आता है ट्रोपोस्फियर में? द ट्रोपोस्फियर इज द लोअरेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड मेक अप अबाउट 75 to 80% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 75 to 80% कौन क्रिएट करता है? ट्रोपोस्फियर। यानी जो भी गैसेस है, ऑक्सीजन, आगे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी पॉल्यूएंट है वो सब ट्रोपोस्फियर में आता है, राइट। द ट्रोपोस्फियर इज द लोअरेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड मेक अप अबाउट 75 to 80% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, राइट। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 75 to 80% ट्रोपोस्फियर में कवर हो जाता है। द हायर यू go up the troposphere, the colder it gets. The air also gets thinner as you travel upward of the troposphere. ये हमें पता है कि अर्थ के नजदीक, यानी कि अर्थ जहाँ ट्रोपोस्फियर स्टार्ट होता है वहां पर जो एयर है वो थिन होगी और हॉट होगी, और जैसे जैसे आप अप जाओगे, ऊपर की डायरेक्शन में जाओगी, तो एयर जो है वो थिन होती जाएगी, सॉरी, और जो क्या बोलते हैं, जैसे जैसे आप अपर जाओगे तो एयर जो है वो कोल्ड होती जाएगी और वो थिनर होती जाएगी, राइट। नीचे जो है वो थोड़ी एयर जो है वो थिन नहीं है, राइट। क्यों ऐसा? क्योंकि सन रे जो है वो डायरेक्ट अर्थ पर आते हैं और अर्थ के ऊपर से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाते हैं, तो सबसे पहला अर्थ गर्म होगा, अर्थ गर्म होते हैं, इसीलिए अर्थ के नजदीक जो एयर है वो गर्म होगी, राइट। गर्म होने के कारण वो पतला हो जाएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर जाओगे तो लो होता जाएगा, तो कूल होता जाएगा, और जो एयर है वो थिन होती जाती है, राइट। इसीलिए आप जब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो आपका ब्रीथिंग जो है उस ब्रीथिंग सिस्टम में थोड़ा चेंजेस हो जाता है। एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड द ट्रोपोपॉज, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला प्लेस है ट्रोपोस्फियर का उसको बोलते हैं ट्रोपोपोज, वेयर टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग अगेन, राइट। उसके बाद ट्रोपोस्फियर के ऊपर से ट्रोपोपोज है वहां पर सबसे ठंडा होगा, राइट। और जहां पर ट्रोपोपोज खत्म होता है वहां से वापस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फियर में जो गैस है उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो लो होता है। उसके बाद ट्रोपोस्फियर के बाद वापस एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा, तो वहां पर वापस टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, राइट। तो फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर। आप उसके अलावा और भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रोपोस्फियर, ए वेरी इंपॉर्टेंट लेयर टचिंग अर्थ सरफेस। ये ट्रोपोस्फियर है वो इंपॉर्टेंट लेयर है जो टच के सरफेस से टच कर रहा है। टेम्परेचर इज डिक्रीज एट रेट ऑफ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ये मैंने आपको बताया कि सबसे ग्राउंड पर अर्थ के नियर जो है वहां पर टेम्परेचर
हाई होगा या लो? लो। हाई होता है भाई, हाई होता है बता सर। तो करें, राइट, कि सबसे स्टार्टिंग में टेम्परेचर हाई होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो लो होता जाएगा, राइट। और सबसे नीचे जो एयर है वो पतली होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वो थिनर होती जाएगी, राइट। तो टेम्परेचर है एवरी किलोमीटर पर, यानी कि स्टार्टिंग में अर्थ के ऊपर 0 किलोमीटर, 0 से एवरी 6.5 केल्विन किलोमीटर पर, सॉरी, एवरी किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो वेरी होता। यानी कि स्टार्टिंग में अगर 0 है तो 1 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर जो है वो 6.5 डिग्री डिक्रीज होता है, यानी कि सॉरी, स्टार्टिंग में अगर 60 डिग्री है या तो 35 डिग्री है, राइट, कि अर्थ के स्टार्टिंग में जहां पर हम खड़े रहते हैं वहां पर 30 डिग्री है, राइट। तो उसके 1 किलोमीटर अप जाएंगे तो वहां पर आपका जो है 24.5 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 6.5 डिग्री डिक्रीज होता है, राइट। उसके बाद आगे हमने देखा कि 80% या तो 90% पार्ट एटमोस्फियर इज कवर्ड इन एटमोस्फियर, राइट। यहाँ पर हमने 75 to 80 लिखा, बुक के अंदर आपको 90% लिखे। दिस लेयर कंसिस्ट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हमने आगे देखा, राइट, हीलियम, hydrogen, etc., vapor and sand particle. Up and down relative movement of gas is much attractive in this layer, and air pollution are much more active in this layer. सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन कौन से इस लेयर के अंदर होता है? ट्रोपोस्फियर के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होता है, राइट। एंड height of this layer varies from 8 किलोमीटर to 95 किलोमीटर। हाइट जो है ये लेयर की 8 किलोमीटर पर, कोई जगह पर 8 किलोमीटर पर खत्म हो जाती है, कोई जगह पर 9, यानी मिनिमम जो है वो 8 किलोमीटर है, राइट। कि सपोज आप माउंटेन एरिया में जाते या तो कोई लोअर एरिया में जाते तो वहां पर सपोज 8 किलोमीटर होता है, तो कोई ऊंचाई वाली सॉरी ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं तो वहां पर, यानी कि ये जो वेरिएशन है ये लेयर का वो 8 किलोमीटर से लेकर 95 किलोमीटर तक वेरिएशन होता है, राइट। और इसका जो टेम्परेचर है, ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर वो 15 डिग्री सेल्सियस टू 56 डिग्री सेल्सियस है। तो फिर 10 डिग्री, अभी तो जो क्लाइमेट चेंज हुआ है तो 10 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस में वेरिएशन होता है। तो दिस इज जस्ट ट्रोपोस्फियर। एनी डाउट? ट्रोपोस्फियर देखिए, एग्जैक्ट आपको किलोमीटर चाहिए तो ट्रोपोस्फियर जो है वो अगर एवरेज करोगे, राइट, तो 0 to 11 किलोमीटर इसकी हाइट है, यानी कि ग्राउंड से लेकर 11 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है। 11 to 50 किलोमीटर तक आप लिखना है तो लिखते जाइए, राइट, कि ट्रोपोस्फियर जो है वो 0 to 11 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फियर जो है वो 11 to 50 किलोमीटर, मेजोस्फियर जो है वो 56 to 85 किलोमीटर, एंड थर्मोस्फियर जो है वो 85 to 100 किलोमीटर है। आगे अगर वो ग्राफ हम देखिए तो यहाँ पर है, राइट, किलोमीटर देखिए 0 to 11 किलोमीटर कौन सा आएगा? ट्रोपोस्फियर। 0 to 11 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर, देन आफ्टर 11 to 50 किलोमीटर आपका स्ट्रेटोस्फियर आएगा, लिखने की जरूरत नहीं, राइट। 50 to 85 किलोमीटर आपका मेजोस्फियर, एंड 85 to 100 किलोमीटर जो है, और वो 100 से 85 के अप वाला जितना भी है वो थर्मोस्फियर आएगा, राइट। ये टेम्परेचर है, राइट। यहाँ पर फ़ारेनहीट में वो कोई काम का नहीं, यहाँ पर 80, यानी अर्थ का जो एटीट्यूड है वो है, राइट। तो बस अब 1 मिनट बाकी है मीटिंग ओवर होने में, तो अभी किसी को क्वेरी है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर तो पूछ सकते हैं। एक क्वेरी किसी को? नो सर। किसी को भी नहीं? No, sir. जस्ट 1 मिनट, स्टे ऑन।
सर अरोरा मतलब क्या होता है? अरोरा मतलब यस सर। ये देख यहाँ पर जैसे स्ट्रेटोस्फियर को ऑक्सीजन मैक्सिमम, सॉरी 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट।